2.3 ملین جابس جو ہیں 2035 تک 5G ٹیکنالوجی کی بدولت پیدا ہوں گی. ان کے اگر بزنس لائسنس کو ایک دفعہ ریویو کر لیا جائے یا ان کو جو ہے نا اگر وہ ٹیکس عوام کے بجائے جو ہے اس کی جو انفراسٹرکچر کی کاسٹ ہے اس کو اس ٹیکس میں ایڈجسٹ کیا جائے جو آپریٹرز کے اوپر لگنا چاہیے. اس وبا کی روک تھام اولین ترجیح ہے. سائٹ پر موجود ہر شخص 2 یا 3 افراد کا کام سنبھال رہا ہے. اس لیے ہم نے ایک نئی چین پاکستان چارٹر پرواز کھولی. ٹڈیوں کی ہجرت پر قابو پانے کے لیے میلیتھین ایک نامزد دوا ہے. جب پائرتھرائڈز کا تناسب آرگینوفاسفیٹس جیسا کہ میلیتھین کا تناسب 1:3 ہے تو کوٹاکسیسٹی انڈیکس 215 تک جا سکتا ہے. جب ہم وہاں گئے تو وہ سب ہمارے انتظار میں کھڑے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے والدین ہم سے ملنے آئے ہیں. جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ہمت کرو چین، ہمت کرو ووہان، ہمت کرو شیاننگ، پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگائے. ناظرین محترم السلام علیکم. پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین. آج ہمارے اسٹوڈیو میں 2 معزز مہمان تشریف لائے ہیں. جناب کامران رسول جو کہ ووکس ویگن گروپ چائنا میں کوالٹی مینجمنٹ سے منسلک ہیں اور جناب محمد عمار جو کہ بیجنگ گلوبل ٹیلنٹ ایکسچینج ایسوسی ایشن میں کمیٹی آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں. سب سے پہلے پاک چائنا رسپانس. حالیہ ایک بیان کے مطابق پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر میں 11.515 ارب روپے کے 11 منصوبوں کی منظوری دی ہے. منصوبوں کو مالی سال 2020-2021 کے لیے محکمہ جاتی ترقیاتی ورکنگ پارٹی BGWP کے اجلاس میں منظور کیا گیا. ان منصوبوں میں کراچی اور گوادر کے مابین آپٹیکل فائبر بیس مواصلاتی لنک کا قیام بھی شامل ہے. پاکستان میں 5G نیٹ ورک تعمیر کرنے کے 3 فوائد ہیں. پہلا یہ کہ پاکستانی حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی حمایت کرتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیلی مواصلات کی مارکیٹ خاصی اوپن ہے. اور تیسرا یہ کہ پاکستان میں موبائل ڈیٹا سروسز کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی 3 نقصانات بھی ہیں. پہلا نقصان ہے فیکس ڈسپوزیبل آمدنی کا کم ہونا. دوسرا یہ کہ پاکستان کی ٹیلی براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریا کے محتمم مفتی نعیم کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ جامعہ بنوریا کے محتمم تھے. اور سائٹ ایریا میں واقع جو جامعہ بنوریا ہے وہاں 52 ممالک کے طلباء پڑھتے تھے. ان سے جب بات کی جائے مفتی محمد نعیم کی تو دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں مناظر ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریا کے محتمم مفتی نعیم کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہمیں اس نماز جنازہ میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں. نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریا کے محتمم مفتی نعیم جو کل ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، مصنف بھی رہے ہیں بہت ساری کتابوں کے. اور جی ان کی جو خدمات ہیں دین کے لیے جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی نماز جنازہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں. آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ساتھ صدر مملکت اور دیگر جو عام شخصیات ہیں ان تمام نے مفتی نعیم کی اس طرح سے جو ان کی نماز جنازہ کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وہ ادا کر دی گئی ہے. لیکن ان کی تدفین اب سے تھوڑی دیر میں کی جائے گی بنوریا عالمیہ کے قبرستان میں. اس بارے میں آئندہ آنے والے بلیٹنز میں ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. دوسرا یہ کہ پاکستان کی ٹیلی مواصلات کی صنعت میں ٹیکس کی شرح بلند ہے. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ ٹیلی مواصلات کا بنیادی ڈھانچہ پسماندہ ہے.
چین میں حال ہی میں 5G نیٹ ورکس کے زیر احاطہ کمولنگما کے شمالی حصے کے ساتھ نیٹیزن کے کلاؤڈ گیز کے تحت چینی کوپیماؤں کی ٹیم نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کی اور 5G نیٹ ورک کے ذریعے بالکل ایک ہی وقت میں ایورسٹ بیس کیمپ سے جڑے۔ مبارک ہو، ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر 5G سگنلز خاص طور پر اچھے ہیں۔ جون 2019 سے جب چین 5G کمرشلائزیشن کے پہلے سال میں باضابطہ طور پر داخل ہوا، چینیوں کو 6 کلومیٹر کی بلندی پر ایک پہاڑ میں 5G بیس اسٹیشن قائم کرنے میں صرف 1 سال لگا۔ اب چین میں ہم ہر ہفتے 10,000 5G بیس اسٹیشنز کو شامل کرنے والے ہیں۔ چین میں 5G صارفین کی تعداد میں اپریل کے مہینے میں 7 ملین سے زائد کا اضافہ ہوا ہے اور مجموعی طور پر 36 ملین سے تجاوز کر گیا ہے۔ 4G زندگی بدل دیتا ہے، 5G معاشرے کو بدلتا ہے۔ 4G کا ظہور لوگوں کو موبائل انٹرنیٹ کے عہد میں داخل ہونے کا باعث بنا ہے، جس سے طرز زندگی اور صارفین کے تجربے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو 5G معاشرے کو کیسے بدلے گا؟ وسطی چین کے صوبہ ہوبے میں اور وہاں کے چائے کے کاشتکاروں نے انٹرنیٹ کی براہ راست نشریات کے ذریعے سامان بیچنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے چائے کے باغات سے باہر جائے بغیر غربت سے نجات حاصل کر سکیں۔ آج میں نے چائے کے باغ سے 1 گھنٹہ لائیو سٹریم سے 20 سے زیادہ آرڈر موصول کیے ہیں اور 16 یوان کمائے ہیں۔ چاؤ ہوا نے کہا ہے کہ گاؤں میں 5G سگنل موجود ہیں، براہ راست براڈ کاسٹ نیٹ ورک تیز ہے، تصویر واضح ہے اور آرڈر کی کامیابی کی شرح زیادہ ہے۔ ماضی میں انٹرنیٹ اچھا نہیں ہوتا تھا اور اکثر سگنل کی صرف ایک بار ظاہر ہوتی تھی۔ ہم سگنل کے لیے اپنے موبائل فون لے کے گھر کے چکر کاٹتے تھے اور گاہکوں کے آرڈر دیکھنے میں اکثر زیادہ وقت لگتا تھا۔ 5G نیٹ ورک کے قیام کے بعد سے زیادہ نوجوان آن لائن سٹور کھولنے، انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست مصنوعات فروخت کرنے گاؤں واپس آئے ہیں۔ اس سال جنوری اور مئی کے درمیان گاؤں کی فروخت کا حجم 80 ملین یوان تک پہنچ گیا۔ اس سال کی چینی حکومت کی ورک رپورٹ میں 5G ایپلیکیشن کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ ورک کی تعمیر کے دوران ایپلیکیشن کو تیز کرنا 5G کمرشلائزیشن کے لیے ایک اور اہم کام بن گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے میدان میں 5G کے وسیع امکانات ہیں، جیسے بغیر کسی شخص کے ڈرائیونگ، اسمارٹ ہوم اور گاڑیوں کا انٹرنیٹ وغیرہ۔ یہ اسمارٹ شہروں، اسمارٹ میڈیکل کیئر اور اسمارٹ دیہی علاقوں کے حوالے سے بھی زبردست صلاحیت کا حامل ہے۔ انتہائی تیز رفتار تجربے اور بڑے پیمانے پر ٹرانسمیشن کی گنجائش کے علاوہ 5G براڈ بینڈ انٹرنیٹ آف تھنگس کے عہد کا آغاز کرے گا اور تیز رفتار، اعلیٰ صلاحیت اور ٹرانسمیشن میں قلیل تاخیر رکھنے والی تمام صنعتوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہ سنہری اشرہ میں بلاک چین، صنعتی انٹرنیٹ، ایج کمپیوٹنگ، مصنوعی ذہانت اور دیگر ٹیکنالوجیز کے ساتھ کام کرے گا۔ چین اس وقت انفراسٹرکچر کی ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، جس کی ایک خصوصیت ہے 5G ٹیکنالوجی کا استعمال۔ تو آپ کے خیال میں کیا اس سے پاکستان میں کاروباری مواقع کو فروغ ملے گا؟ کہ 2.3 ملین جابس جو ہیں 2035 تک 5G ٹیکنالوجی کی بدولت پیدا ہوں گی۔ میرا خیال سے جو پاکستان میں سب سے پہلے جو تبدیلیاں آئیں گی وہ انہی 2 سے 3 چیزوں میں آئیں گی، جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو 5G ایک پاکستان میں ای کامرس جو ہے سب سے زیادہ ای کامرس کے پلیٹ فارم کو فروغ ملے گا۔ کروں گا کہ جو 5G ٹیکنالوجی ہے وہ انیبل کر رہی ہے انٹرنیٹ آف تھنگس کو، IoT کو، وچ مینس کہ آپ کی گاڑیاں، آپ کے جو گھر میں ٹی وی ہے، جو آپ کا فریج ہے، جو آپ کا اوون ہے، آپ کی جتنی بھی اپلائنسز یا ڈیوائسز آپ یوز کر رہے ہیں اپنے گھر میں اور اپنے آفیسز میں، ان سب کو کنیکٹ کرنا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنجنگ چیز ہے، لیکن اگر ہم اس سے گزر گئے تو یہ آگے جا کر ایک ڈیفینیٹلی ول بی اے گریٹ اچیومنٹ فار پاکستان۔ ان کے اگر بزنس لائسنس کو ایک دفعہ ریویو کر لیا جائے، یا ان کو جو ہے نا اگر وہ ٹیکس عوام کے بجائے جو ہے اس کی جو انفراسٹرکچر کی کاسٹ اس کو اس ٹیکس میں ایڈجسٹ کیا جائے جو آپریٹرز کے اوپر لگنا چاہیے۔ اب ہم
CPAC मेट में एक रिपोर्ट देखते हैं। चाइना इकोनॉमिक नेट के ज़ेरे एहतमाम क्लाउड सैलून, चाइना पाकिस्तान ट्रेड हॉटलाइन टिड्डी दल कंट्रोल के लिए मुश्तरका कोशिश में चीन और पाकिस्तान के 170 के करीब माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर दोनों ममालिक के माबैन टिड्डी दल के कंट्रोल पर बाहमी तावन के बारे में तबादला ख्याल किया। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए कीड़ेमार दवाओं के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। कीमियाई कीड़ेमार अद्वियात, हयातियाती रोकथाम और कंट्रोल, माहौलियाती कंट्रोल और टिड्डियों के कंट्रोल के दीगर तरीकों के सिलसिले में पाकिस्तान को अब किसका इंतखाब करना चाहिए? अब कश्मकश ये है कि टिड्डियों की बुनियादी तादाद को कैसे कम किया जाए ताकि ये इतनी तबाहकुन साबित ना हो। अगर आप 2013 की तारीख की बात करें तो मडगास्कर में टिड्डी दल का हमला हुआ था। खुराक और ज़राअत की तंजीमों की मदद से इसको रोकने के लिए कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे और कीमियाई तरीके इस्तेमाल किए गए थे। कीमियाई कंट्रोल से फौरी नताइज, अच्छे असरात और वसी हद तक इतलाक के साथ साथ तबाही पर मौसर अंदाज में काबू पाया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स, द केमिकल्स, चीन से आने वाले केमिकल और कीड़े मार अद्वियात बहुत अहम हो सकती हैं और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम पिछले कुछ बरसों से जो भी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा चीन से आता है। खाद की तरह पाकिस्तान चीन से DAP खाद दरामद कर रहा है और ये तकरीबन 500 से 600 मिलियन डॉलर की है। इसी तरह केमिकल हैं, अगर आप तमाम केमिकल जमा करते हैं तो ये तादाद करीब 1 अरब डॉलर तक पहुंच जाती है, जिसमें चीन का तकरीबन 50% हिस्सा है और इसमें मजीद इजाफा मतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने रवां साल 11 फरवरी को एक आलमी इंतबाह जारी किया था और दुनिया में हाई अलर्ट जारी किया ताकि टिड्डी दल के हमले से मुतासरा ममालिक में ग़ज़ाई बहरानों से बचा जा सके। सर्वे के मुताबिक टिड्डियों के लश्कर ने मशरक़ी अफ्रीका, मशरक़ी वस्ता और जनूबी एशिया के 23 ममालिक पर हमला किया है, जो 70 वर्षों में टिड्डी दल का सबसे बड़ा हमला है। FAO ने बताया कि 80 मिलियन बालक टिड्डियाँ जितना एक दिन में खाती हैं, इससे 35,000 अफराद को खाना खिलाया जा सकता है। चीन टिड्डी दल पर काबू रखने वाली टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबकत रखता है। चीन पाकिस्तान को कीमियाई कीड़ेमार अद्वियात के हवाले से क्या मशवरा दे सकता है? ये मैलेथियन है। मैलेथियन एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीड़े मार दवा है जो आमतौर पर निस्बतन कम जहरीली और माहौल दोस्त है, क्योंकि ये तेजी से जज़ब होती है और माहौल में ज्यादा देर तक नहीं रहती। ये सब्ज लैम्डा साइलोथ्रीन है जो कम जहरीला है। टिड्डियों को मारते वक्त ये इत्तफाकी तौर पर दूसरे कीड़ों को भी मार सकता है। निस्बतन कम जहरीला होने की वजह से ये चीन में सब्ज हशरात कुछ दवा के तौर पर भी जाना जाता है। टिड्डियों की हिजरत पर काबू पाने के लिए मैलेथियन एक नामजद दवा है। येलो रिवर का इलाका हर साल टिड्डियों की तबाहकारियों का शिकार होता था और मैलेथियन एक अहम कीड़े मार दवा के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये ज्यादा जहरीला और ज्यादा मुहलिक है, लेकिन ये निस्बतन तेजी से इन्हेतात करता है। आमतौर पर ये रोशनी से 2-3 दिन में गल जाता है। माहौलियाती माहौल और इंसानों और हैवानात पर कीमियाई कीड़ेमार अद्वियात के नुकसान को कम से कम करने के लिए मुनासिब खुराक और इस्तेमाल अहमियत की हामिल है। जब पाइरेथ्राइड्स का तनासुब ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसा कि मैलेथियन का तनासुब 1:3 है तो कोटॉक्सिसिटी इंडेक्स 215 तक जा सकता है। लिहाजा अगर आप ऐसा करते हैं तो कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल कम हो जाएगा, जबकि रोकथाम का असर बेहतर होगा और बाकियात कम हो जाएंगी। सहराई टिड्डियां रात के वक्त और सुबह सवेरे तक दरख्तों पर टिकी रहती हैं। अगर हम ऐसे वक्त में कीमियाई स्प्रे करें तो ये मौसर साबित होगा। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए कीमियाई कीड़ेमार अद्वियात एक हंगामी इकदाम है, लिहाजा तवील अरसे में कौन से दूसरे हयातियाती तरीकों को आम इस्तेमाल किया जा सकता है? माहौलियाती मुशाहिदे और रोकथाम और कंट्रोल के बारे में क्या ख्याल है? इसके लिए देखें CPAC मेट की अगली किस्त।
जी, मौजूदा सूरत हाल में टिड्डियों को रोकने के लिए कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कारगर रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में इसकी रोकथाम के लिए हमें कौन से इक़दाम इख्तियार करने चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको पता ही नहीं है कि टिड्डियों का भी जो है ना हमला हो रहा है, और ये न्यूज़ पे उस तरह से इसकी कवरेज नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो अवेयरनेस इज़ द नंबर वन थिंग। बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योरल जो है ना इंक्यूबेटर बनाए जाएं, जिसमें वो स्टूडेंट्स जो चाइना में पढ़ते हैं या बाहर पाकिस्तान से पढ़ते हैं या पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको ये चैलेंजेस दिए जाएं, और उसके अलावा और कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज को भी बुलाया जाए, खासतौर पर चाइनीज़ कंपनीज को जिनको बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है। आइए पाक चाइना ट्रेड में एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने के इक्तिसादी और तजारती दफ्तर की वेबसाइट के मुताबिक चीन की तरफ से इंसदादे वबा के सामान की फराहमी की 5वीं खेप मई के वस्त में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंची। इससे कबल अप्रैल में चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कारपोरेशन CMEC और जुनर्जी कंपनी लिमिटेड ने वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड को तकरीबन 30 लाख रुपए अतिया किए। तो पाकिस्तान में चीनी कारोबारी इदारों की मौजूदा सूरत हाल क्या है और चीनी और पाकिस्तानी मुलाजमीन की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाए? इस वबा की रोकथाम अव्वलीन तरजीह है। हमारे मंसूबे 44 मुमालिक में चल रहे हैं। दर हकीकत बहुत से मुमालिक को एक संगीन सूरत हाल का सामना है। इसके रद्दे अमल में उन मुमालिक ने शहरों में लॉकडाउन, बैनुल-अक़वामी परवाजों की मुअत्तली और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी जैसे इक़दामात उठाए हैं। कोविड-19 वबा के आगाज के बाद हमने वबाई अमराज से बचाव के लिए कुछ बुनियादी सामान तैयार किया। बुनियादी ज़रूरियाते ज़िंदगी और वबा से बचाव का सामान 3 माह के लिए हर साइट पर फराहम करने के लिए तैयार किया गया। हमारी कंपनी ने खुसूसी तौर पर कुछ डिसइंफेक्शन रूम कायम किए हैं। चीनी हो या पाकिस्तानी मुलाजिम, कंपनी में दाखिले के वक्त उन्हें डिसइंफेक्शन होने की जरूरत है। काम और पैदावार की बहाली और वबा की रोकथाम और कंट्रोल के इक़दामात के तहत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की तामीर को कैसे यकीनी बनाया जाए? मकामी अहलकार वक्त पर साइट में दाखिल नहीं हो सकते, जिसके बाद पूरे मंसूबे की पेशरफ्त बहुत मुतासिर हुई है। हम सिर्फ हिफाजती इक़दामात यकीनी बना रहे हैं ताकि जहां तक मुमकिन हो प्रोजेक्ट मुतासिर ना हो। साइट पर मौजूद हर शख्स 2 या 3 अफराद का काम संभाल रहा है। हमारी कंपनी के मकामी मुलाजमीन करंटीना के लिए अपने घरों को जा चुके हैं और चीनी मुलाजमीन कोऑपरेटिव सारफीन की तलब को पूरा करने के लिए शिफ्टों में काम करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनियों को किस तरह की मदद की जरूरत है? गुज़श्ता बरस से पाकिस्तान ने इनकम टैक्स की शरह में इजाफा किया है। हो सकता है कि माजी में इसमें तरजीही और 2 तरफा छूट की शरह शामिल हो, मगर अब ये छूट तस्लीम नहीं की जा रही और हो सकता है कि मुआहदे पर टैक्स लागू हो। असल टैक्स की शरह 0 थी, लेकिन अब ये 7% है। इसे मजीद कम करके 2.1% किया जा सकता है। ताहम हतमी टैक्स की मुकम्मल सूरत हाल को तय करना होगा। इसलिए टैक्स का बोझ अब भी बहुत ज्यादा है और बहुत सी कंपनियां इतना मुनाफा नहीं कमा रही हैं कि टैक्स का बोझ बर्दाश्त कर सकें। ये सबसे बड़ी परेशानी है जिसका हमें पाकिस्तान में सामना है। पाकिस्तानी मार्केट कीमतों के हवाले से बहुत हसास है। दरामदी महसूलात और कारोबारी टैक्सों जैसे वसी टैक्सों की शरह ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हमारी मसनूआत की कीमतें और मुनाफा दूसरी मंडियों के मुकाबले में कम होगा। टैक्स के बोझ को बढ़ाना मुख्तसर मुद्दत में मालियाती महसूल में इजाफे का बराह रास्त फायदेमंद जरिया हो सकता है, लेकिन तवील मुद्दती एतबार से देखा जाए तो टैक्स की पॉलिसी मुस्तकिल न होने की सूरत में गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में कमी आ सकती है। कोविड-19 वबाई बीमारी से मुतासिर क्या कंपनी के सालाना अहदाफ में कोई एडजस्टमेंट हो सकती है? वबा के दौरान वबा से बचाव के लिए सामान की बरामद हमारी चंद नुमाया खुसूसियात में से एक है। तिब्बी सामान बरामद करने की शराइत
कलील अरसे में पूरी नहीं हो सकती हैं। माजी में इन शराइत को पूरा किया जा चुका है। इस वबा के दौरान मेडिकल डिवाइसेस की तैयारी के मयारात और सर्टिफिकेट समेत दस्तावेजात मुकम्मल हैं। हमारी कंपनी की मजमूई पैदावार और ऑपरेटिंग सूरत हाल साल ब साल किसी हद तक कम हुई है और मुराद का एक सिलसिला भी मुतारिफ कराया गया था, और अगर 30 जून तक सालाना हदफ का निस्फ से ज्यादा हासिल कर लिया जाता है तो टीम या महकमे को कुछ इजाफी इनाम के तौर पर भी पेश किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के साथ कंपनी का कारोबार मजमूई तौर पर तकरीबन 70% है, क्योंकि वबा के दौरान पाकिस्तान ने समंदरी और जमीनी आमदोरफ्त को बंद कर दिया। इसलिए हमने एक नई चीन पाकिस्तान चार्टर परवाज खोली। हर हफ्ते 3 परवाजें उर्मची से इस्लामाबाद जाने वाली पहली हवाई चार्टर परवाज 10 अप्रैल को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंची। उम्मीद है कि रसद तिजारत के लिए फायदेमंद होगी। जैसा कि पाकिस्तान का आम, किन्नू, चलगोजा और सी फूड वगैरह खाने की ये अशिया मकामी कीमत में बहुत सस्ती हैं और ये चीन में फरोख्त के लिए भेजी जा सकती हैं और ये काफी मुनाफा बख्श हैं। इस वबा से मुतासिर होने के बाद एक अंदाजे के मुताबिक 2020 की पहली छमाही में पाकिस्तान में फरोख्त 15 मिलियन के हदफ में से 60% से 70% तक पहुंच जाएगी। 2020 में हम एक बड़े साल की तैयारी कर रहे हैं। हम 2019 की बुनियाद पर फरोख्त और इससे मुताल्लिक मुनाफे में तकरीबन 35% इजाफे का मंसूबा रखते हैं। हम काफी ज्यादा पुरएतमाद हैं। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान और चाइना को भी इन स्पेशल ट्रैक्स को बनाने चाहिए, जिस ट्रैक्स के थ्रू जो चीनी अवाम चाइना में मौजूद है उनको पाकिस्तान भेजा जाए ताकि वो अपनी कंपनी में बाकायदगी से काम बहाली कर सकें। चीन ने एक और भी बहुत अच्छा कदम ये लिया था, ना सिर्फ के फॉरेनर्स के लिए बट ऑल्सो तमाम उन लोगों के लिए जो चाइना में मुकीम थे, चाहे वो फॉरेनर्स हों या लोकल चाइनीज। वो ये कदम उठाया था कि चीन ने कहा कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं काटेगा। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। Maybe it's 1000 or 1100 किलोमीटर, शायद 1000 या 1100 किलोमीटर का फासला हो। जी हाँ, ये तमाम काउंसिल खानों के अलावा सिफारत खाने से भी बहुत दूर है। ये 14 फरवरी की बात है जब हम बीजिंग से वुहान गए थे, जब वबा अपने उरूज पर थी। चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने के एजुकेशन अताशी मोहम्मद सुलेमान महसूद ने अप्रैल के आखिर में चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर को अपने वुहान के सफर के बारे में बताया। रवां बरस 14 फरवरी को सुलेमान महसूद और चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने के सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद जुनैद को हुबे में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया था। 23 जनवरी को लॉकडाउन के बाद से हम वुहान जाना चाहते थे। न सिर्फ हम बल्कि हमारी सफीर साहिबा भी पाकिस्तानियों से मिलने के लिए जाती तौर पर वुहान जाना चाहती थी, लेकिन जाहिर बात है कि लॉकडाउन वहाँ एक मकसद के तहत था और वहाँ करंटीना की सूरत हाल भी थी। चुनांचे 14 फरवरी वो वक्त था जब आखिरकार चीनी हुकूमत ने हमें इजाजत दे दी, क्योंकि हम तवील अरसे से वहाँ जाना चाहते थे। लिहाजा लॉकडाउन के कमोबेश 3 हफ्तों बाद हम वुहान पहुँच गए। जब हम वहाँ गए तो हमें मालूम नहीं था कि हम कब वापस आएंगे। हमें बताया गया कि हम उस वक्त वापस आएंगे जब वुहान में मामलात मामूल पर आ जाएंगे। मार्च में पाकिस्तानी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दौरा चीन के दौरान सुलेमान महसूद और जुनैद ने हुबे में सदर और पाकिस्तानी तुलबा के माबैन वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। महसूद ने चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने बुनियादी तौर पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वुहान के एक सिचुएशन रूम से किया था। They were in Beijing. वक्त उस दौरे के दौरान बीजिंग में था और हम वुहान में, मैं, जुनैद और 40 से जायद तलबा। क्योंकि वी चैट की कुछ पाबंदियां हैं, इसलिए एक वक्त में 9 अफराद कॉल कर सकते थे। चुनांचे हमने हुबे में मौजूद 14 मुख्तलिफ इलाकों या यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए 2 सेशंस मुनक्किद किए। उन्होंने सदर पाकिस्तान और वुज़रा से बराह रास्त बात की, जिसके बाद सदर और वुज़रा ने हमसे भी बात की।
सलमान महसूद चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने के वाहिद एजुकेशन ऑफिसर हैं। उनकी एक टीम है। उन्होंने रजाकाराना तौर पर वुहान जाने के लिए दरखास्त दी थी और सफीर पाकिस्तान की जानिब से उसे मुस्बत जवाब मिला। If you don't get a अगर response, आपकी दरखास्त को कोई मुस्बत रद्द अमल नहीं मिलता तो ये बेमानी है। हमारे लिए अच्छा मौका था क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के सफीर रज़ाकाराना खिदमात की हौसला अफजाई करती हैं और उन्होंने हमें मुंतखब किया। लिहाजा मैं और जुनेद दोनों उनके हमेशा के लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वहाँ भेजने के लिए हमें मुंतखब किया। जी हाँ, अगर हमारे वतन के तलबा किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो हम उनकी आसानी के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। this was one एक occasion वक्त ऐसा भी आया जब मैं और जुनेद शियानिन गए। वहाँ एक यूनिवर्सिटी में गए जिसका नाम खोबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। वहाँ बहुत कम उम्र तलबा हैं और वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो वो सब हमारे इंतजार में खड़े थे और जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हमारे वालिदैन हमसे मिलने आए हैं। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन्होंने हिम्मत करो चीन, हिम्मत करो वुहान, हिम्मत करो शियानिंग, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वो कुव्वत है जो हमने अपने पाकिस्तानी तलबा में देखी। करंटीना के कुछ महीनों में उन्होंने सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाकर तलबा में पाई जाने वाली परेशानी और इज़्तिराब की कैफियत को कम करने में एक दूसरे की मदद की और वाज़े किया कि उनके लिए पाक चीन दोस्ती का मतलब क्या है। आपके ख्याल में वुहान के तजुर्बात की जो अहमियत क्या है? मैं समझता हूँ कि जो वुहान के जो तजर्बात हैं, आज जो चाइना इस दौर से मुश्किल हालात से निकला, वो उसकी वजह यही थी कि जो वुहान में इतने सख्त फैसले लिए गए और जो उधर के जो तजर्बात हैं वो हमें रियल टाइम में डेफिनेटली पाकिस्तान को वो सीखने हैं और उस पर अमल दरामद करने हैं अपने तौर तरीके को बीच में मिला के।